assume that there is no fan here, okay, and no, there is no fan and both the shafts lies on the same line. सेम लाइन है मतलब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम P80 and P80 here also. So is there will be any flow of air like that, और किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होगा? नो सर. No. So that's why we installed a fan. तो अब समझ में आ गया फैन क्यों इंस्टॉल होता है? टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू शाफ्ट. ठीक है, we install fan to create a pressure difference between two shafts. Now let's assume that the pressure of the fan installed is Pf. ठीक है, and this is the exhaust fan. This is a exhaust fan. अब बताओ प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? I write this 1, I write this 2. Where will be the pressure will be more? बताओ, at point A or point B? Point A. Yes, point A or point 1. Pressure will be more at point 1 because always air or fluid flow from high to low. So pressure of 1 will be greater than pressure of 2. That's why this flow will occur. तो ये difference कितना होगा? कोई बताएगा? तो P1 minus P2 कितना होगा? मतलब प्रेशर एट पॉइंट 1 आर क्यू स्क्वायर सर. आर क्यू स्क्वायर होगा, बट अभी हम उसमें क्यू में आए नहीं है, अभी वो होगा पीएफ के बराबर में होगा ना, प्रेशर ऑफ फैन. फैन का प्रेशर में सबको समझ में आ रहा है? P1 माइनस पी टू इक्वल टू पी एफ क्यों होगा? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा देन टेल मी. ठीक है, P1 माइनस पी टू विल बी पी एफ. सो यू कैन सी दैट, तो मेरा द मेन मोटिव इज to tell you that the pressure of fan installed is equal to the difference between the pressure between two shaft. मतलब shaft 1 का shaft 2 का जो pressure difference होगा वो pressure PF होगा. Now I tell you that there is a quantity flow Q through the shaft and there is a no split. हाँ बोलो सर. इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब P2 और PF अलग अलग हैं क्या? देखो, हाँ, P1 is the pressure at this point just above the shaft 1, P1. ठीक है, and P2 is the pressure at shaft 2 just above the shaft 2. P2 यहाँ पर है. समझ में आ गया डिफरेंस? मीन्स प्रेशर एट दिस पॉइंट just above the shaft 1 and pressure above the shaft 2. shaft 2 क्या? आउटलेट है. अब समझ में आ गया? Yes, sir. So due to the fan installed there will be a pressure difference. तो वो मैंने उसी को डिस्क्राइब किया है. Now there is a quantity Q flowing through the splits. Sorry, यहाँ कोई split नहीं है. So quantity जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा and the same quantity will flow throughout the mines. That means in series there is no split, so Q will same. ठीक है, throughout the mine. Actually we are taking the ideal condition, so ऐसा मत बोलना कि यार वो तो पॉसिबल नहीं है. Actually we are assuming the ideal condition. ठीक है, now tell me that pressure of fan that is P1 minus P2, this is pressure difference is equal to. अब देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है. Now I am telling you that there is a pressure loss between P1 to P2. प्रेशर लॉस होगा, क्यों होगा? ड्यू टू द रेजिस्टेंस. ड्यू टू रेजिस्टेंस प्रेशर विल ड्रॉप. सो बाय हाउ मच क्वांटिटी इट विल ड्रॉप? इट विल ड्रॉप बाय P1 माइनस P2, मतलब जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, आर क्यू स्क्वायर. सो यू कैन सी दैट
RQ square is nothing just the pressure drop or pressure difference between two points that you are taking and which is equal to PF. तो इक्वेशन 1 मैंने ये निकाला, इक्वेशन 2 ये निकाला, तो दोनों से प्रूफ हो गया ना, PF इज इक्वल टू RQ स्क्वायर. किसी को कंफ्यूजन है? PF इक्वल टू RQ स्क्वायर कैसे आया? सर ये समझ में आ गया है, हाँ बट मेरा एक क्वेश्चन है सर. हाँ कि बोलो. जैसे क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस के कारण प्रेशर ड्रॉप होता है Yes. या फैन के कारण, मतलब फैन का क्या रोल होता है और रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है प्रेशर ड्रॉप करने में? देखो, प्रेस द रोल ऑफ प्रेस फैन, see, the role of fan is to create pressure difference. ठीक है, फैन का काम है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट, दोनों शाफ्ट के बीच में प्रेशर क्रिएट करना. अब एक बार प्रेशर क्रिएट हो गया, now once the pressure difference is created, then what will be the next step? Quantity of flow, means flow of air. जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, देन व्हाट विल हैपन? एयर विल फ्लो. एयर फ्लो से क्या आएगा? हमारा क्वांटिटी आएगा. ओके, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन हाउ मच क्वांटिटी विल फ्लो. ठीक है, it will be, the quantity of air will be determined by two factors. One is pressure difference, how much pressure difference is created due to fan, and what is the resistance. ठीक है, that's why we tell that PF is directly proportional to quantity square Q square, and its proportionality को हटाने के लिए ये हम लगाते हैं RQ square. सो यू अंडरस्टैंड दैट आर का काम है प्रेशर ड्रॉप करना एंड पीएफ का काम है प्रेशर क्रिएट करना. ठीक है, यस सर. हम लोग ये सब क्वेश्चन में थोड़ा आएंगे, बट उसके पहले पहले सीरीज पैरेलल का मैं क्लियर करवा दूं, और आज मैं बूस्टर और रेगुलेटर का भी ट्राई करूंगा क्लियर करने का. नाउ आई थिंक यू हैव सम क्लैरिटी on this. Now let's assume there is a two series. अच्छा, one thing I want to tell you that as it is a revision type of class, so you must have the basic knowledge of any topic before the class. ठीक है, which I can't start from the basic because GATE 2023 has only 1 month, so you should have some basic knowledge, and whenever you are having any doubt, you can ask me anytime. ठीक है, now this is a series अंडरग्राउंड सर्किट और माइंस. ठीक है, नाउ assume that this is a split A and this is B and this is the shaft, this is the trunk. Okay, and this is a exhaust fan. Let's assume that the exhaust fan pressure is PF. Okay, and its resistance is RA. Okay, and its resistance will be RQ and its resistance will be RA. Now quantity Q will flow. Let's assume any quantity Q will flow. Here quantity, so now tell me what will be QA and QB. QA और QB क्या होगा? Means quantity flowing through the A and B क्या होगा? सर RA अपॉन RA प्लस RB. नहीं, मैं उस फॉर्म में नहीं पूछ रहा, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ इट विल बी सेम एज क्यू. होगा ना, बिकॉज यू कैन सी दैट
देयर इज नो स्प्लिट, मतलब कहीं पे बट नहीं रहा है, Q विल बी सेम। मैं बताता हूँ, लाइक देयर इज अ पाइप, देखो मान लो यहाँ से 10 लीटर पर सेकेंड जा रहा है, मीन्स 10 लीटर पर सेकेंड इज फ्लोइंग। नाउ आई विल आस्क यू that what is the quantity flowing in this region also, it will be same 10 लीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वांटिटी कैसे चेंज होगा, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर भी तो निकल रहा है, मीन्स 10 लीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना, जितना मीन्स द क्वांटिटी that is going inside that must go outside also, same quantity. So like here there is no split, in which case quantity will be different, I'm going to tell you right now. See, in this case let's say 10 liter per second is flowing through it, okay. Now in this case the volume will split, तो यहाँ पर कुछ Q1 आएगा, यहाँ पे कुछ Q2 आएगा, it depends on the cross section area, and Q1 plus Q2 will be 10। तो समझ रहे हो ना किस केस में डिफरेंट होगा Q1 एंड मीन्स क्वांटिटी इन स्प्लिट, जब स्प्लिट हो जाएगा, जब ये मान लो कोई पाइप है एंड देयर इज अ 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन और 4, देन इन दिस टाइम द वॉल्यूम विल चेंज। तो सीरीज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन सीरीज द क्वांटिटी विल बी सेम थ्रू आउट द माइंस। तो ये सब कुछ लाइन्स है जो याद रखना। सर हम लोग Q को करंट की तरह एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा टोटली उसी पे बेस्ड है, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस जो हमारा क्लास 10th में था। इन सीरीज Q विल सेम, ठीक है। और जैसे तुमने बोला Q को करंट के से हम ले सकते हैं, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से, एंड वोल्टेज को प्रेशर से, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वैसा सोच सकते हैं, ओके। अब हम इससे थोड़ा एक इक्वेशंस में आएंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द इक्वेशंस। Now what is the pressure difference between this point and this point, means between two shaft, what is the pressure difference, means P1 minus P2 कितना है, PF के बराबर है ना, fan pressure। now this total fan pressure will be equal to the, ये किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर ड्रॉप, टोटल प्रेशर ड्रॉप कहाँ कहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यू कैन सी प्रेशर इज ड्रॉप्ड इन शाफ्ट, शाफ्ट में हो रहा है, फिर दो स्प्लिट है ए एंड बी, वहां पे हो रहा है ना। सो तो तुम्हें क्या लिखना है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट प्लस डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप इन ए प्लस प्रेशर ड्रॉप इन बी के बराबर होगा। मतलब समझ रहे हो, जितना यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ शाफ्ट में, जितना यहाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ ए में, जितना प्रेशर ड्रॉप हुआ बी में, that will be equal to the total pressure difference. So in the starting phase I have already told you that PF fan pressure creates the fan pressure, PF creates the fan pressure, means pressure difference between two shafts. And what does resistance do, resistance drop the pressure and it creates the pressure drop। तो तुम्हें लिखना है how much pressure dropped at the shaft। So can anyone tell how much pressure dropped at shaft, resistance of shaft into Q square, ठीक है, प्लस
रेजिस्टेंस ऑफ ए इंटू क्यू ए का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बी इंटू क्यू बी का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ पर? सर हाँ सर जहाँ से बाहर आ रहा है फैन की तरफ से, इधर का रेजिस्टेंस और जो बीच बीच में छूटा हुआ है आर ए आर के बीच, देखो, आपका एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, साफ्ट, तो साफ्ट ट्रंक सब एक ही में हो जा रहा है, उतना ध्यान मत, मतलब किस समझे, मतलब इफ आई एम राइटिंग आर साफ्ट देन वी आर एज्यूमिंग दैट ये साफ्ट यहाँ का रेजिस्टेंस सेम है, बोथ द रेजिस्टेंस आर सेम, दैट इज आर साफ्ट। अगर अलग देना होगा तो अलग दे देगा एक क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम। नाउ इससे एक चीज आता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप एट ए, मतलब स्प्लिट ए में प्रेशर ड्रॉप कितना हुआ, तो क्या बोलोगे? तेजा, आर यू देयर? नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर ड्रॉप एट ए? R into Q square. आर ए इंटू क्यू स्क्वायर, राइट। नाउ सिमिलरली टेल मी हाउ मच प्रेशर ड्रॉप एट द बी, दैट इज आर बी क्यू स्क्वायर। तो ये समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाहता हूँ, दैट इज हाउ टू राइट द प्रेशर ड्रॉप and RQ square represents the pressure drop, you can see, and the total pressure drop is equal to the fan pressure। सिंपल है, जितना भी रेजिस्टेंस दिया हुआ उसका प्रेशर ड्रॉप निकाल दो एंड इट इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस और फैन प्रेशर। तो ये सब तुम्हें कंसेप्ट तुम्हें लग रहा है कि चलो ये तो ऊपर ऊपर है, क्वेश्चन बनाने में यूजफुल नहीं होगा, सो I wanna tell you that just go for the 2019 question ventilation का circuit पे and tell me that it can be solved with formula or not। उसके लिए पता है यही सब जरूरत है, ये जो मैंने बताया, this concept is required, means pressure drop, RQ square represents the pressure drop, ठीक है। Now we will solve one question on the basis of this, then we will go for the parallel circuit। R shaft का resistance है, resistance of the shaft is 0.1, fan pressure is 400 pascal, resistance of B is 0.5, resistance of A is 0.1, ठीक है। Now tell me what is the quantity, quantity क्या होगा? To write the quantity what you need to find, तो हम जनरली कैसे निकालते हैं बताओ? अब तक तुम कैसे निकालते थे? अब तक ऐसे निकालते थे ना, आर इक्विवेलेंट निकालते थे, सीरीज का फॉर्मूला, विच इज आर ऑफ शाफ्ट प्लस आर ए प्लस आर बी, कुछ ऐसे निकालते थे ना? कोई बताओ? मयंक, तेजा? जी सर, ऐसे ऐसे निकलते थे सर, इक्विवेलेंट शाफ्ट आर ए या आर शाफ्ट प्लस आर ए प्लस आर बी सर। ओके, एंड व्हाट, ऐसे निकालते थे, चलो ये भी एक सही मेथड है, बट आई थिंक यू शुड गो फ्रॉम द बेसिक्स, मीन्स फैन प्रेशर इज गिवन, R shaft, RA, RB is given. Now you have to find the Q. So first write the equations. Actually this will apply to any question, any type of question, whatever it will ask. So try to write the pressure, fan pressure, and which is equal to the pressure drop of, means delta P shaft plus delta P into Q, sorry, PA plus delta PB 400 is equal to
delta P shaft is equal to R shaft. Now I am going to derive the formula that you are talking about. RA Q square plus RB Q square. Why I have taken the Q same? Because quantity will remain same in series case. ठीक है, that is 400 is equal to Q square, and you can see R shaft plus RA plus RB. You can see that ये R equivalent का यहाँ पर आ गया, R equivalent आ गया ना, ऐसे ही निकालते ना, पहले R equivalent निकालते, फर्स्ट यू डिराइव R equivalent then you will get the Q. तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं विदाउट नोइंग एनी फॉर्मूला. अर्पित, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. सीरीज में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, और आई शुड गो फॉर द पैरेलल पार्ट. सीरीज में बस इतना ही है, पैरेलल थोड़ा सा अच्छा है. सर बोलो. अगर इनटेक में कुछ प्रेशर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली, इसलिए तो मैंने इस दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, लाइक P1 P2. तो तुम ऐसे मान लो, तुम्हारा केस में समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट. बिफोर इंस्टॉलिंग द फैन, ओके, बिफोर इंस्टॉलिंग द फैन द प्रेशर वाज नॉट सेम. यहाँ P1 था, यहाँ P2 था, ठीक है. नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग द फैन PF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस PF हो जाएगा और यहाँ पे P2 रहेगा, ठीक है. क्या करो, एज यू नो दैट PF इज द, ये प्रेशर डिफरेंस PF है, और ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे फैन के वजह से 0 कर दो, यहाँ पे प्लस PF कर दो. नाउ प्रेशर डिफरेंस विल बी P1 प्लस PF माइनस P2. ठीक है, समझ गए? और आई शुड यूज द एग्जाम्पल, मैं डेटा से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा. क्या, मान लो यहाँ पर 10 पास्कल था, ओके, एंड हेयर इट वाज 20 पास्कल. नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड द फैन, एक फैन इंस्टॉल किया, एंड इट्स प्रेशर इज 400 पास्कल. नाउ टेल मी द इफेक्टिव डेल्टा P, मतलब इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस. बताओ कोई. देखो, व्हाट फैन डज, फैन क्रिएट्स द प्रेशर डिफरेंस, ओके. तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय द फैन ओनली? 400. सिर्फ फैन की वजह से देखना, 400, मतलब यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पे 400 है, लाइक दैट, जैसे हम लोग सर्किट डायग्राम वोल्टेज वगैरह में करते थे. सो हाउ मच प्रेशर इज देयर इन दिस रीजन? इट इज 10 प्लस 400, और यहाँ पर कितना है, 20 है, तो प्लस 0, दैट इज माइनस 20, सो इट विल बी 390. क्लियर है? यस सर. ओके. इसमें थोड़ा सा अगर डेप्थ में मैं क्वेश्चन बनाता हूँ. हाँ बोलो. सर मतलब ये वाली बात थोड़ी नहीं समझ में आ रही, जो आप 400 A के पास रख रहे हैं, मतलब ये थोड़ा कैसे, और ये 0 कैसे रख रहे हैं? ओके, देखो, मैंने हमेशा क्या बोला, इट डेल्टा P मतलब प्रेशर ऑफ फैन क्रिएट्स द प्रेशर डिफरेंस, सो एंड इट इज इक्वल टू 400. यहाँ तक तो ठीक है ना, प्रेशर ऑफ फैन इज 400 विच इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड डेल्टा P. तो तुम कुछ भी ले सकते हो, 800 माइनस 400 भी ले सकते हो, डेल्टा मतलब डेल्टा P को 400 माइनस 0 भी ले सकते हो, ठीक है.
तो लेकिन 400 ही आना चाहिए। तो तुम यहाँ पे लिख, तुम मान लो यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिया, मैंने यहाँ पे 400, मैंने यहाँ पे 800 लिया, मतलब जो भी हो हमें 400 का ही डिफरेंस लेना है, ठीक है, हमेशा। और यहाँ पे ही मैंने क्यों ज़्यादा लिया, बिकॉज दिस इज द एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, दिस इज द एग्जॉस्ट फैन एंड इट्स क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है यहाँ ज़्यादा होगा, इट विल बी मोर हेयर, सो Yes, sir. द बिगर पार्ट विल बी इन द इनलेट, द जो बिगर प्रेशर होगा विल बी द इनलेट पार्ट। मान लो यहाँ 800, मैंने यहाँ 400 ले लिया, अगेन कैलकुलेट, द थिंग यू विल गेट इज सेम, आंसर जो आएगा सेम आएगा। तो ऐसा ही है, तो हम क्यों ना यहाँ पे 0 और यहाँ पे 400 ले, आ गया सर। ठीक है। इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जस्ट स्ट्राइक हुआ है, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। Let's say there is a height difference h, okay. Now tell me where will be the pressure will be more, pressure ज़्यादा कहाँ पे होगा, 2 or 1, where pressure will be more? सर 1 पे। 1 पे, due to the atmosphere, means you know that about rho g h, ठीक है। एंड what will be the difference between 1 and 2, p1 minus p2 कितना होगा, it will be equal to the height difference, means density of air into g into height difference, मतलब कितना height difference है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Okay, now I want to ask you that if you want to install exhaust fan, ठीक है, एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है in this mines, so where you will prefer to install it, at 1 or 2, कहाँ पर लगाना पसंद करोगे? सर P2 पर। ऑब्वियस बात है, वेरी गुड, P2 पर। वाई P2? बिकॉज यू वांट टू मेक इट, तो तुम अच्छा, एग्जॉस्ट फैन जहां लगेगा, व्हाट इट विल डिटरमाइन, इट विल डिटरमाइन दैट विच विल बी योर इनलेट एंड विच विल बी योर आउटलेट, मतलब इट विल डिटरमाइन योर आउटलेट एंड इनलेट शाफ्ट। So if you are putting this fan in 2, that means 1 will work as a inlet and 2 will work as a outlet. So always inlet में जितना ज़्यादा pressure होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। So you can see that P1 is already having some advantage of pressure, that is rho GH, मतलब rho GH ज़्यादा है P2 से, ठीक है। Now if you install a fan PF, so what will be the total pressure difference between shaft? अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो टोटल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट क्या होगा, मैंने बताया था ना, इट विल बी ऑलवेज P1 माइनस P2 प्लस PF, ऑलवेज। तो P1 माइनस P2 क्या है, रो जी एच प्लस PF। ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक है, यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग, ये मैंने डायग्राम बनाया था खुद से, तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से दे दिया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। हाँ, now we will discuss about the parallel splits.
So in this diagram, is this diagram visible to everybody? सबको दिख रहा है ना? और मयंक, हेलो मयंक, ठीक है। तो now this is the parallel split and it is the most asked question in the ventilation. तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। You can see this is the shaft, this is the split A, this is the split B. Now मैंने एक केस बताया था पाइप वाला, याद है? सबको याद है क्या? If there is a quantity Q flowing, then here may be quantity Q1 and it quantity will be Q2. But हमेशा जानो जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर भी जाएगा. So incoming is Q and outgoing is Q1 and Q2. तो so Q1 and Q2 का जो सम होगा will be always equal to Q. ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, याद रखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है. क्वांटिटी Q इज इक्वल टू QA प्लस QB. ये क्यों होगा ये समझ लो, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जैसे यहाँ पे Q अगर आ रहा है, Q इज इनकमिंग एंड सम पार्ट और सम वॉल्यूम गोज टू स्प्लिट A एंड सम वॉल्यूम गोज टू स्प्लिट B. तो उससे टोटल वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, समझ रहे हो? फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे Q अगेन Q विल बी फ्लो. तो QA प्लस QB Q फ्लो करेगा. ठीक है. एक चीज और हमेशा याद रखना, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट्स इज सेम. मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, डेल्टा PA इज इक्वल टू डेल्टा PB. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इट इज रिटन? अर्पित और विश्वजीत और कोई भी बताओ. व्हाट? दोनों एंड में प्रेशर डिफरेंस होता है, इक्वल प्रेशर. ये प्रेशर डिफरेंस, pressure A हाँ, equal to change in pressure B. यस. सो व्हाई इट इज देयर? ये क्यों है? प्रेशर चेंज इन प्रेशर है एंड चेंज इन मींस ड्रॉप इन प्रेशर है और ड्रॉप इन प्रेशर भी, जो भी बोलो. व्हाई इट इज सेम? बिकॉज इट इज मेजर्ड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स. यू कैन सी जो मैंने ब्लैक लाइन लिखा, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज P1. लेट्स एज्यूम दिस इज P1 एंड दिस इज P2. ठीक है, मान लो. अब मैं बोलूँ P1 माइनस P2. ठीक है, ये क्या है? P1 माइनस P2. तुम बोलोगे कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, ये क्या है? दिस, ये प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट A बोल सकते हो और प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट B भी बोल सकते हो. सर हाँ, इसमें मतलब दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा तो वो डिफरेंट होगा, क्या नाम? यस, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा एंड क्वांटिटी भी डिफरेंट होगा, बट दोनों Yes. इस तरह से डिफरेंट होगा कि तुम्हारा जो प्रेशर है, प्रेशर ड्रॉप वो सेम होगा. यही समझना है, यही पैरेलल का फंडा है. जैसे मैं सर्किट, इससे थोड़ा एग्जांपल से देता हूँ. ये तो सबने पढ़ा होगा. दिस इज R1, दिस इज R2, रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 एंड ये कुछ लगा हुआ है. सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, करंट फ्लो होगा. नाउ ये इसमें पैरेलल में याद है लेते थे वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम, मतलब दोनों बीच का वोल्टेज सेम होगा. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ भी सेम वही फंडा था. इट इज वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ पे मान लो वोल्टेज V1 है एंड यहाँ पे V2 है, तो ऑलवेज जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V1 माइनस V2 वो सेम होता है.
R1 और R2 के लिए, R1 और R2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तभी ना करंट डिफरेंट होता है। तो करंट विल एडजस्ट, जो करंट का स्प्लिट था, मतलब मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा, यहाँ पे 3 एम्पियर आएगा, वो इस तरह से स्प्लिट होगा। इट विल स्प्लिट इन सच अ वे दैट द वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम। जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा आर आई स्क्वायर, जो इस तरह का आई स्क्वायर आर कुछ फॉर्मूला था ना, या फिर आई इंटू आर जो भी था, वो सेम आएगा। आई इंटू आर था वहाँ पे, हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट है, दैट प्रेशर जो ड्रॉप होगा, मीन्स प्रेशर ड्रॉप इन ए एंड प्रेशर ड्रॉप इन बी विल बी सेम। क्यों होगा? बिकॉज ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बीच में नाप रहे हो? दो पॉइंट के बीच में नाप रहे हो। यू आर कैलकुलेटिंग इन बिटवीन टू पॉइंट्स एंड वो जो दोनों पॉइंट है ना वो सेम है दोनों के लिए। फॉर अ स्प्लिट ए एंड फॉर अ स्प्लिट बी इट इज सेम। You can see, yeah, for a split A this is the same point you are referring, for a split B the point is again same। so दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों का पॉइंट का डिफरेंस भी सेम होगा, दैट्स वाई प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ड्रॉप विल बी सेम। तो ये हमेशा याद रखना, डेल्टा पी ए इक्वल टू डेल्टा पी बी। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? क्वांटिटी विल बी डिफरेंट इन ईच स्प्लिट, ठीक है, क्यू ए प्लस क्यू बी। यहाँ सिर्फ क्वांटिटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी ना सर, दोनों स्प्लिट के। यस, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस क्वांटिटेटिव विल, ये क्वांटिटी जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। सीधा हम लोग बोल सकते हैं इफ रेजिस्टेंस इज हाई या देन क्वांटिटी विल बी लेस, Okay. और इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन क्वांटिटी विल बी हाई। because because वॉल्यूम, सॉरी, बिकॉज प्रेशर ड्रॉप को सेम रखना है, इसीलिए ये चीज आ रहा है। we can understand conceptually also, because if resistance is more then less number of particle of air will be going from that path, ओके, यस यस, and यू आर राइट। yeah, if resistance is less then more number of air particle will pass through from that path. Yeah, this is understood. So that's I'm talking about, that the quantity split will depend on the resistance, ठीक है। एंड तो ये वाला कंसेप्ट समझ गए ये। नाउ प्रेशर ड्रॉप बिटवीन ईच स्प्लिट विल बी इक्वल, दैट इज डेल्टा पी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी बी। ये बहुत ही काम आएगा, ये हमेशा समझना। और एंड आफ्टर दैट इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? इसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, हाँ बोलो सर। जो प्रेशर ड्रॉप है वो ये रेजिस्टेंस के कंडीशन में सेम रहेगा कि कुछ डिफरेंट कंडीशन में सेम रहेगा? मतलब ये कंडीशन में सेम रहेगा कि सीरीज कंडीशन के हिसाब से? सीरीज, इन सीरीज केस इट विल बी सेम। जब स्प्लिट सीरीज में, यू कैन सी इट, एक स्प्लिट है बी, दो स्प्लिट है सीरीज में, सीरीज दिख रहा है ना, सीरीज कंडीशन। इन सीरीज कंडीशन प्रेशर ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी विल बी सेम। सर पैरेलल में चेंज हो जाएगा? सॉरी पैरेलल नहीं, पैरेलल में सेम रहेगा, एंड सीरीज में तो चेंज होगा। सीरीज में तो इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। मान लो ये सीरीज था तो यहाँ पे अलग क्यों था? बिकॉज यू आर फाइंडिंग द प्रेशर ड्रॉप बिटवीन, मान लो P1 एंड P2, बट फॉर अ स्प्लिट ए, बट फॉर अ स्प्लिट बी, दिस इज अ स्प्लिट बी, तो उसका पॉइंट ही सेम है। यू कैन सी दिस इज 0.3 एंड 0.4, तो दोनों का पॉइंट ही सेम है, सो ऑब्वियसली दिस इट विल बी डिफरेंट। मैं उस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, देखना द पॉइंट, मतलब P1 माइनस P2। ये डेल्टा P क्या है? डेल्टा पी ए मीन्स प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट ए और प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट बी। तो वो कैसे नापते हैं? मीन्स जो स्प्लिट स्टार्ट होने से पहले जो पॉइंट था एंड स्प्लिट
मतलब खत्म होने के बाद जो पॉइंट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है प्रेशर का। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ही थोड़ा डेरिवेशन करेंगे हम लोग। छोड़ो, यहाँ पे देयर इज अ फैन PF, okay, and there is a shaft which is resistance of RS, and it is RA, and it is RB. So if I tell you, and let's assume that Q is flowing through this, so obviously QA will flow through this and QB will flow through this. तो हमें बस इक्वेशन में जानना चाहता हूँ क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। Q इजिकल टू QA प्लस QB, आई थिंक हेयर देयर इज नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है। एंड सेकेंड थिंग मैंने लिखा है डेल्टा PA इजिकल टू डेल्टा PB। अगर ये सब समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा आगे, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। विच इज एंड प्रेशर ड्रॉप इन A इजिकल टू RA इंटू Q स्क्वायर। तो ये याद रखना कि whenever I am writing that pressure drop at A, okay, so you have to take the resistance of that part only. जहाँ का प्रेशर ड्रॉप निकाल रहा हूँ वहाँ का ही रेजिस्टेंस सिर्फ लेना है। If I am writing the pressure drop at B, then only resistance of B will be included, RB into Q square. ये समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बोला? ठीक है। यस सर। Now I want to write the equation, जो याद है हमने जो P1 minus P2 is equal to PF, मतलब फैन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट प्लस स्प्लिट लिखा था, याद है ना? इफ यू रिमेंबर दिस, प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट एंड स्प्लिट, इफ यू रिमेंबर। सो दिस PF is equal to pressure drop in shaft. So what is the pressure drop in shaft? शाफ्ट में प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है? बताओ। मैंने अभी क्या बोला था? प्रेशर ड्रॉप वहीं का, प्रेशर ड्रॉप लिख रहे हो तो रेजिस्टेंस वहीं का होगा, दैट मीन रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट एंड QA, सॉरी यहाँ QA एंड QB होगा। एंड क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी विल बी द जो उस पोजीशन वहां पे जो क्वांटिटी होगा। सो व्हाट इज द क्वांटिटी फ्लोइंग इन द शाफ्ट? Q, सो Q, हाँ Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें से याद रखना, R और Q। R वही होगा जहां का प्रेशर ड्रॉप निकाल रहे हैं, एंड Q विल बी द सेम वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ड्रॉप, एंड हियर इट इज डेल्टा PA। तो यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करो, that I am writing only delta PA, not writing the delta PB. Why? Means fan pressure दोनों सेम है। obviously दोनों सेम है, दोनों का पॉइंट सेम है। देखो हमने प्रेशर ये मैंने क्या बोला, आई फर्स्ट फाइंड द प्रेशर ड्रॉप एट शाफ्ट, मैंने प्रेशर ड्रॉप एट शाफ्ट निकाल दिया, प्रेशर ड्रॉप एट शाफ्ट। अब क्या बचा? प्रेशर ड्रॉप एट स्प्लिट। सो प्रेशर ड्रॉप एट स्प्लिट मीन्स pressure drop between these 2 point, okay, and you know that pressure drop between these 2 point या तो either PA लिखो delta PA or either delta PB लिखो, both will be same. So you can write either PA either delta PB square, RA QA square। ठीक है, now ये एक तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका है, मान लो PF is equal to R shaft Q टोटल Q स्क्वायर प्लस RB QB स्क्वायर, ये भी लिख सकते हूँ, क्योंकि इन दिस एट दिस टाइम आई एम राइटिंग डेल्टा PB, एंड यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा PA। एज यू नो दैट डेल्टा PA एंड डेल्टा PB इज सेम, तो तुम दोनों में से कोई भी लिखो बात बराबर होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर तुमने इतना समझ लिया तो ये सीरीज और पैरेलल सर्किट तुम आसानी से बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन।
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? जो मैंने इक्वेशन लिखा है No, sir. पी एफ इज इक्वल टू No, आर sir. साफ्ट क्यू स्क्वायर प्लस आर बी क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। देखो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रख सकते हो, बट अगर तुम्हें ये पता है, ये बेसिक चीज़ें पता है जो मैंने बताया, देन यू डोंट रिक्वायर टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल चीज़ है। बोलो। सर जो नॉर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस निकालते थे सर, उसमें रूट नहीं होता था, मतलब ये ये पैरेलल में तो रूट था ना? नहीं सर, उसमें हम बात कर रहे हैं करंट और उसमें अच्छा ये करंट, में। अच्छा तो अच्छा। सर उसमें होता था कि नहीं? हमें लगता है नहीं होता देखो था। वहां पे क्या था फॉर्मूला, v इक्वल टू आई आर, यहाँ था। यहाँ पे है p इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ रहा है तो उसकी वजह से रूट अंडर आ जाता है, समझ गए? हम्म, समझ हाँ गए ना? जी। एक्चुअली तुम जो मैंने ये किया है ना, ये पार्ट तुम इसको इससे तुम निकाल सकते हो आर इक्विवेलेंट, ठीक है। वो जैसे मैंने आर सीरीज का निकाला था याद है, वैसे मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है निकालने का। वो कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। फॉर तुम डेरिवेशन अगर तुम्हें करना है तो यहाँ से एक पार्ट ये होगा, देखो डेरिवेशन का मैं बता ही देता हूँ। यू नो डेट डेल्टा पी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी बी, ये पता है तुम्हें, तो तुम यू कैन राइट इट एज आर ए क्यू ए स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू आर बी क्यू बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। नाउ ये एक दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, ओके। सर अब तुम इसमें क्या करोगे, Q मतलब जो Q है ना, टोटल Q क्वांटिटी Q, इसको पुट करना है। तो यहाँ पर यू कैन राइट आर ए के जगह क्यू ए के जगह तुम लिख सकते हो Q माइनस क्यू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर बी क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसमें ये एक जो पी एफ होता है, पी एफ का इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू क्यू स्क्वायर हम टोटल लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ठीक है, यस सर। आर साफ्ट क्यू स्क्वायर। तो थोड़ा ये सब करोगे, ये दो तीन इक्वेशन सॉल्व करोगे, तुम्हारा ये वो वाला रूट अंडर वाला आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करके, ओके सर। ठीक है। तो उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है इसका डेरिवेशन में, बस ये जो बेसिक मैंने बताया है रूल दो तीन, बस उतना याद रखो, बहुत है। यस सर। जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सारा क्वेश्चन गेट का ही डिस्कस करेंगे, तो देखना जो मैंने तरीका बताया उससे कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अ माइन वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट्स ए एंड बी, स्प्लिट्स ए और बी है, ठीक है, विथ रेजिस्टेंस 0.8, यहाँ पर 0.8 है एंड यहाँ पे 3.2 है, ठीक है। Trunk airways have resistance of 0.2. This is trunk and its resistance is given as 0.2. The main mine fan is generating pressure of 500 Pascal. Means fan pressure is 500 Pascal. In this question, it is asked the air quantity is in meter cube per second in a splits A and B. What is asked? What is QA and what is QB? So tell me the solution without finding any, without using the R trunk. मतलब किसी तरह का एक इक्वेशन लिखो और उससे मुझे आंसर बताओ। कैन यू फाइंड द आंसर यूजिंग ओनली वन इक्वेशन? E is equal to R Q square. देखो डेल मैंने हमेशा सर क्या, हाँ, आर ए इंटू क्यू ए इज इक्वल टू आर बी इंटू क्यू बी सर। क्यू बी स्क्वायर, यस।
Yes, मीन्स प्रेशर ड्रॉप विल बी सेम, तो बस ये लगाओ, ठीक है। सो आर ए इंटू क्यू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी इंटू क्यू बी का होल स्क्वायर। तुमने ये लिखा, व्हाट इज आर ए, इट इज 0.a क्यू ए का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ गया है कुछ लोग मैं क्या करने वाला हूँ। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज क्यू ए बाई क्यू बी, क्यू ए बाई क्यू बी कितना आएगा? बताओ, 2 आएगा क्यू ए बाई क्यू बी? किसी को डाउट हो रहा है क्या? नो सर, 2 ही आएगा सर। 2 आएगा। सो आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें ऑप्शंस में देखो कि इसमें क्यू ए बाई क्यू बी 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है नहीं, इसमें 30/20 नहीं आ रहा है 2, 20/10 यस 2 आ रहा है, 40/10 4 आ रहा है। सो आंसर विल बी सी, यस सर। आंसर विल बी सी। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत मजा आता है एग्जाम में। सर इसमें डबल फंडा लग गया है, मतलब एक तो ऑप्शन और प्लस वो प्रेशर ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट। यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो प्रेशर ड्रॉप है जो मैंने एंड ये जो Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें ये सब याद रखो एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इजीली, वेरी इजीली। अगर तुम इसे फॉर्मूला बेस्ड अगर सॉल्व करने जाते तो बन जाएगा ऑब्वियसली, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, किसी को कंफ्यूजन है? नो सर प्लीज। ओके, और चलो एक क्वेश्चन वो करते हैं। In a mine ventilation system, the resistance of two splits A and B, means you can see this is the series and resistance of A is 0.5 and resistance of B is 2. Combined resistance of two shaft and trunk is 0.7. You can see that it is written combined resistance of shaft and trunk. This is shaft, this is trunk. तो यहाँ पर combined में दे दिया है, तो तुम्हें bother करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में। The quantity of 20 meter cubic per second passes through the split A, and यहाँ पर क्या दिया हुआ है? QA given है, मीन्स A से कितना क्वांटिटी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज आस्क्ड? द टोटल एयर क्वांटिटी पासिंग थ्रू द माइन। तो ये क्या पूछा है? टोटल क्वांटिटी पासिंग थ्रू द माइन। कैन यू टेल मी द आंसर? अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया, तो इसमें भी सेम वही फंडा लगाना, डेल्टा पी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी बी, ठीक है। उससे क्या होगा? मुझे क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो मिल जाएगा, एंड यू नो क्यू ए तुम्हें पता है 20, एंड यू नो डेट क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। समझ गए? यस सर। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताना प्लीज। बन गया सर, इजीली बन जाता है सर। इजीली बन जा रहा है ना? कहीं तुम्हें कुछ बिना कैलकुलेटर के बन गया। वही तुम फंडा 2 सेकेंड, मतलब ये क्या 1 मिनट से भी कम समय लगेगा क्वेश्चन, बस जस्ट यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू कैन सी दैट ये जो ट्रंक का दिया हुआ है और बहुत सारे अननेसेसरी डेटा भी गिवन रहते हैं। एक्चुअली दैट आर नेसेसरी इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द फॉर्मूला। अगर तुम फॉर्मूला और जो पुराने मेथड है उससे सॉल्व करने जा रहे हो तो तुम्हें सब कुछ लगेगा, ठीक है। इसमें देखो फैन प्रेशर का भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, बस ऐसे ही बन जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है फिर ये पैरेलल में किसी को डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट इन द पैरेलल पार्ट? तो मैं रेगुलेटर और बूस्टर फैन में जाता हूँ।
सर एक सीरीज का क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रेशर ड्रॉप डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तुम सीरीज का बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, करवाता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखो, सीरीज का जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लो देखो, यहाँ पे मैंने फैन लगा दिया। Here I put it fan that is 400 Pascal, let's assume, and its resistance is 1 or its resistance is 2. ठीक है, I'm taking the EG and its resistance is 0.5. Okay, now from the equation, PF means fan pressure, EG equal to pressure drop in shaft, that is 0.5 Q square, quantity will be same, and it is 1 resistance of A and Q square plus resistance of B into Q square। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड क्यों किया है? बिकॉज प्रेशर ड्रॉप यहाँ भी होगा, प्रेशर ड्रॉप यहाँ भी होगा, प्रेशर ड्रॉप यहाँ भी होगा, तीनों में होगा। दैट्स वाई मैंने ऐसे लिखा है, समझ गए? एंड प्रेशर ड्रॉप विल बी डिफरेंट। यस सर। ठीक है, तो रेगुलेटर में करते हैं। मिनट। सर वेंटिलेशन कनेक्शन मतलब सीरीज और पैरेलल होता है सर, कि कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है सर इसमें? मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब सीरीज और पैरेलल डिफरेंट कंसेप्ट है और वेंटिलेशन कनेक्शन डिफरेंट कंसेप्ट है क्या सर? नहीं, सेम ही है एक्चुअली। क्या होता है माइंस में, इन माइंस, इन अंडरग्राउंड माइंस, ऐसे शाफ्ट से अंदर गए एंड इट हैज़ डिफरेंट सेक्शंस। तो इन डिफरेंट सेक्शंस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर यू हैव टू ड्रॉ, मतलब पास करवाना है, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, हाउ मच पर्सन्स आर वर्किंग। सो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सेम ही चीज़ है, मतलब ये यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितना प्रेशर, कहाँ कितना रेजिस्टेंस है, कहाँ कितना प्रेशर ड्रॉप करना है। तो ये सब फैक्टर्स के लिए यूज होता है, समझ गए? यस सर। नाउ वी विल सी अबाउट द रेगुलेटर पार्ट। ठीक है, तो देखा अभी हमारे पास एक रेगुलेटर का क्वेश्चन आया एंड वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलेटर। अच्छा, उसके पहले ये एक आध और क्वेश्चन करना है क्या? ठीक है, रेगुलेटर का ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। अब हम रेगुलेटर प्लेस करते हैं। तो जब भी हम रेगुलेटर प्लेस करते हैं, मतलब कहीं भी किसी सेक्शन में, किसी स्प्लिट में, व्हाट इट डज, इट एड्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस को ऐड करना, आर जी, उसे मैं डिनोट करता हूं विथ आर जी। ओके, let's assume that this is the parallel split। पैरेलल के पहले एक सीरीज में ऐड करवा देता हूँ रेगुलेटर, तुम समझ जाओगे सर एक्चुअली। वॉइस लैग हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाँ सर ठीक है। ओके, लेट्स, दिस इज अ सीरीज सेक्शन
और एक ही स्प्लिट है, मतलब एक ही चीज, एक ही है, and it has a fan installed. Now this is the split having RA, and this is the shaft having resistance RS. Now if I told you to write the equation, तो सिंपल इक्वेशन होगा PF इज इक्वल टू RA इंटू क्यू स्क्वायर प्लस RS इंटू क्यू स्क्वायर, ये होगा ना शाफ्ट का ड्रॉप प्लस ए का ड्रॉप. इज देयर एनी कंफ्यूजन? Yes. No, sir. Okay, now what if I put a regulator RG, यहाँ पे regulator put कर दूंगा, so what it will does, it will adds resistance, ठीक है ना? Yes, sir. अब मुझे कोई इक्वेशन बताओ, अगर ये कैसा काम करेगा, ये भी सेम वही होगा यार, आप पी एफ इक्वल टू आर एस क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या करेगा, आर ए में आर जी जुड़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस विल ऐड, ठीक है? तो अब इक्वेशन लिख सकते हो, तो अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, मैंने क्या बोला, आर ए में जुड़ जाएगा, आर ए प्लस आर जी Okay, plus RG. क्यू स्क्वायर. तो समझ गए, रेगुलेटर जहां भी लगेगा सिंपल वो क्या चेंज करेगा, Sir, resistance ऐड हो जाएगा. ठीक है? तो सीरीज में तुम समझ गए, पैरेलल में भी सेम वैसे ही फंडा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ गए ना? यहाँ पर कोई डाउट है रेजिस्टेंस sir. है तो सिंपल है. नेक्स्ट पेज में जाते हैं, एक मिनट. ओके, तो ये सीरीज है, आर शाफ्ट आर ए आर बी, ओके. ठीक है, नाउ इसमें पहले इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो तो पता ही है, पी एफ इज इक्वल टू आर एस क्यू स्क्वायर प्लस आर ए क्यू ए स्क्वायर, ठीक है? पहले क्यू ए और क्यू बी पार हो रहा था, ठीक है? नाउ मैंने क्या किया, आई जस्ट पुट रेगुलेटर इन एनी वन स्प्लिट, मैंने किसी एक स्प्लिट में रेगुलेटर पुट कर दिया. I put some regulator in say splits A, and this is split B, and I put some regulator in A, RG, which resistance is RG. So what will be the net resistance in A? तो net resistance क्या हो जाएगा A में? It will be RA plus RG. किसी को डाउट है क्या? Why will be the resistance will add? Okay, now tell me that what will be the effect on the quantity. तो क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा, either it will change or it will remain same. जो मैंने पहले बोला था वहां पर it is QA. so what will be the resistance, new resistance, it will be same. जैसे मैंने पहले यहाँ पे मान लो 10 था, it will be 10 और it will be less. कॉमन फंडा से बताओ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी घटेगा, है ना? It will be less. ओके, इट विल बी लेस. अगर यहाँ पे 10 था
सो इट मे बी 8 9 7 6 जो भी हो, बट इट विल बी लेस। ग्रेट। तो पहला फंडा यही है दैट रेगुलेटर पुट करने से आफ्टर पुटिंग द रेगुलेटर जो क्वांटिटी होता है चेंजेस। ओके, नॉट इवन इन क्यू ए, सिर्फ यहां नहीं, द क्वांटिटी विल चेंज इन बी ऑल्सो, क्यू बी ऑल्सो, एंड क्वांटिटी विल चेंज इन shaft also, means total quantity will also change. So can anyone tell me why total quantity will change? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि सर टोटल रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर, टोटल रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा तो टोटल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, और टोटल क्वांटिटी चेंज हो रहा है, क्यूए चेंज हो रहा है, क्यूबी भी चेंज होगा। तो इक्वेशन उसके बाद इक्वेशन सेम होगा, बस आर ए की जगह आर ए प्लस आर जी लगा देना है, ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें? इसमें याद ये रखना है कि क्वांटिटी विल चेंज आफ्टर पुटिंग रेगुलेटर। किसी को डाउट है यहाँ पर? आरबी के जगह आरए को रिप्लेस आरबी हाँ। की जगह आरजी को रिप्लेस करना है। नहीं, ये आर बी यही रहेगा, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ बी और दिस स्प्लिट का जो आर बी होगा इट विल रिमेन सेम, बट मैंने इस स्प्लिट में एक रेगुलेटर पुट किया है दैट हैज हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ आर जी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये कोई स्प्लिट है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस आर ए था, ऑलरेडी इट हैज रेजिस्टेंस दैट इज आर ए, and I have put some resistance RG. So you can see that both are in series. ये तो दोनों सीरीज में है ना, so Yes, sir. its resistance will add up upon and which is equal to RA plus RG. तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा स्प्लिट का, बस क्या करना है हमें, ये जो नया स्प्लिट है उसका रेजिस्टेंस हमें RA प्लस RG कर देना है, मतलब ऐड हो जाएगा। जहां अगर मैंने RB में रेगुलेटर लगाया तो RB में ऐड होगा, A में लगाया तो A में ऐड होगा, Clear, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन बना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टू स्प्लिट्स A एंड B आर वेंटिलेटेड फ्रॉम एन इनटेक एयरवे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द स्प्लिट्स आर 0.5 एंड 0.8, सो इसका रेजिस्टेंस है 0.5 एंड इसका रेजिस्टेंस है 0.8, ठीक है। अ रेगुलेटर इज प्लेस्ड इन स्प्लिट बी, यहां पे देखो स्प्लिट बी में एक रेगुलेटर पुट किया है, ये रेगुलेटर है, तो ये क्या करेगा, एक आर जी मतलब एक रेजिस्टेंस ऐड करेगा बी में टू मेंटेन द फ्लो ऑफ 15 एंड 10 इन स्प्लिट्स ए एंड बी। मतलब आरजी पुट करने के बाद जो क्वांटिटी क्यू ए है वो 15 है, और जो क्वांटिटी बी है वो कितना है, 10 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द साइज ऑफ द रेगुलेटर, ठीक है। तो एक फंडा एक फॉर्मूला तुमने सुना होगा, आर जी इक्वल टू रूट अंडर एक कुछ कर, यहाँ पे कुछ टर्म्स था 1.8 और सम टर्म्स वाज देयर बाय रूट अंडर आर, रूट अंडर ए कुछ ऐसा था ना, नहीं मतलब एरिया निकालने का 1 बाय रूट अंडर आर जी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर, ठीक है। यह तो हम बाद में निकाल लेंगे, तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना है, आरजी निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेगुलेटर। पहले आरजी निकाल लेंगे और आरजी निकाल के उसका साइज भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ इसमें भी सेम फंडा तुम लगाओ जो मैंने बताया था, डेल्टा पी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी जी पी बी, मतलब प्रेशर ड्रॉप इन ए एंड प्रेशर ड्रॉप इन बी विल बी सेम। इसमें भी लगाओ, तो प्रेशर ड्रॉप इन ए के लिए क्या होगा, आर ए
क्यू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप इन बी। तो यहाँ पे देखना प्रेशर ड्रॉप इन बी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर इंटू क्यू बी का स्क्वायर। यहाँ पे डाउट है किसी को तो बताना, जो मैंने अभी जस्ट लिखा। नो सर। स्प्लिट बी में मैंने ऐड किया है, तो स्प्लिट बी का न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बी प्लस आर जी। मैं हमेशा से बताया पिछले बार भी, तो सेम थिंग हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द आर ए, इट इज 0.5 ठीक है 0.5 इंटू क्यू ए। तो क्यू ए क्या है 15 है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यस सर। एंड व्हाट इज आर बी, इट इज 0.8 प्लस आर जी इंटू क्यू बी का होल स्क्वायर। क्यू बी कितना है 10 का होल स्क्वायर है, तो इससे आर जी निकाल सकते हो। तो कोई मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, देखता हूँ पहले कौन बनाता है। बताओ कितना आ रहा है, या मैं ही सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली आई डोंट हैव कैलकुलेटर, सो 1.4 आर जी कितना आ रहा है 1.4 1.45 1.45 ठीक है। तो ये उसके बाद तुम साइज का जो फॉर्मूला होता है आर जी का, ठीक है, वो तो कॉमन क्या फॉर्मूला था, 1.2 हाँ by 1.2 बाई रूट अंडर आर था ना, ऐसा कुछ, ठीक है 1.2 बाई रूट अंडर आर, तो वो लगा देना, वो बन जाएगा। ठीक है, देखो आ रहा है क्या उससे, वन पॉइंट टू बाई रूट अंडर 1.45। ठीक है, ज़्यादा हम फॉर्मूला पे नहीं जाते, वैल्यूज पे नहीं जाते, बस फंडा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। तो अब बताओ रेगुलेटर प्रॉब्लम कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा है क्या? नो सर, क्लियर है। सर बोलो। इसमें मेरी जो वैल्यू आ रही है 0.325 आ रही है, मतलब आर क्यू आर जी यानी रेगुलेटर वाला। आर जी कितना आ रहा है? फिर पॉइंट 325 ओके। एंड और सर कैलकुलेट करने पर आंसर सी आ रहा है 1.20। ठीक है, तब सही है, ये सही होगा, ये वैल्यू ज़्यादा सही, ये वैल्यू सही होगा। ओके, तो वही मैं वैल्यू पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि वो तो यार कैलकुलेटर गिवन है, कैलकुलेट कोई भी कर सकता है। तो यहाँ तक ये इक्वेशन को लाना बड़ी बात है। ठीक है, ये इक्वेशन ला दो, उसके बाद तो तुम कैलकुलेट तुम्हारे हाथ पे। अब बताओ सीरीज पैरेलल में कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ पहले से? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2018 का गेट का, दिस इज द 2018 गेट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन a portion of a ventilation system has two splits shown in split A दिया हुआ है which is 0.2, रेजिस्टेंस क्या है 0.2 है, एंड रेगुलेटर ऑफ साइज 2 मीटर स्क्वायर। मतलब इस बार क्या किया है, इस बार उल्टा किया है, इस बार रेगुलेटर का साइज दे दिया है दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट बी, तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्प्लिट बी का रेजिस्टेंस पूछा है। अब मुझे कोई बताओ कैसे, इसमें क्या करेंगे? ये भी सेम है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सर वही प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप ऑफ बी। बिल्कुल सही जवाब, प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप ऑफ बी।
यहाँ देखो, सर इसमें आरजी की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। हाँ पहले आरजी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला ये होता है A इज इक्वल टू 1.2 बाई रूट अंडर आर। तो उससे मैं रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर निकाल लूंगा। वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर वी विल अप्लाई दिस डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी, ठीक है। और वो अप्लाई करेंगे और हमारा बस ये निकालना, रेजिस्टेंस ऑफ बी निकालना है। क्यू बी इज गिवन आर ए आर जी, आर रेगुलेटर का तुमने आर जी निकाल लिया, आर ए इज ऑल्सो गिवन, क्यू ए इज ऑल्सो गिवन, सो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो एक चीज तुम देख रहे हो, जो मैंने एक फंडा बताया, प्रेशर ड्रॉप इन ए इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप इन बी, ये लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। यस सर। इसके पहले पता था क्या तुम्हें कंसेप्ट? नो सर। नो सर। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता होगा इससे पहले। यस सर। सर अभी स्टोरी टाइप मतलब अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी और रिमेम्बर करने में सर फॉर्मूला। चलो अच्छी बात है। तो ऐसे ही जो भी मेन टॉपिक्स है तो मैं सारे ट्राई कवर करने का ट्राई करूंगा गेट से पहले। ये क्वेश्चन खुद से बना लेना। जो 65 का फर्स्ट पार्ट था वो हमने बनाया था ना, 20/10 आया था आंसर। सेकेंड पार्ट खुद से बना लेना, ठीक है। अच्छा, बूस्टर फैन है ना, मेरे पास अभी बूस्टर फैन का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। रेगुलेटर क्लियर है तो बोलो, उसके बाद बूस्टर फैन का कंसेप्ट बताऊंगा। क्लियर है सर। ठीक है। देखो ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो डेल्टा पी ए को डेल्टा पी बी है, प्रेशर ड्रॉप है, ये सब भी काम आया है और कुछ करने जाते बनता ही नहीं। चलो थोड़ा सा बूस्टर फैन को पढ़ा जाए। बूस्टर फैन, तो कोई बताएगा मुझे ये बूस्टर फैन क्या करता है? सर जो एरिया या जो फेस के तरफ वेंटिलेशन कम है सर, हाँ, वहाँ वेंटिलेशन बढ़ा। गुड। टू ऐड वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन ऐड कैसे होता है? मतलब वेंटिलेशन ऐड करवाना मतलब हमें फ्लो बढ़ाना है, ठीक है। वी हैव टू इंक्रीज द फ्लो, तो इंक्रीज पूरा फ्लो ऑफ द माइंड से एयर को पूरा डील करता है ना सर। क्या? ये सर पूरे माइंड से एयर फ्लो को डील करता है ना सर ये सर। बूस्टर फैन, ये बूस्टर फैन जी किसी एक सर। सेक्शन में लगता है, मतलब कोई एक स्प्लिट में या फिर कोई एंड में, कोई एक सेक्शन में लगता है, ठीक है। पहले समझ लो बूस्टर फैन कहाँ लगता है। जैसे अंडरग्राउंड तुम गए, सांप से अंदर गए, तो ये बहुत डिफरेंट लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स है। ये दिस इज द सीम एंड मान लो यहाँ पर ये वर्किंग चल रहा है एंड नियर दिस वर्किंग यहाँ पर वेंटिलेशन का हवा पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है, सो अनदर एडिशनल फैन इज इंस्टॉल्ड, तो उसे जनरली ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन ये सब बोलते हैं, ठीक है। जब बूस्टर फैन का काम क्या है? टू ऐड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन ऐड का मतलब है क्वांटिटी इंक्रीज करना। क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करेगा? प्रेशर डिफरेंस बढ़ाने से, प्रेशर डिफरेंस बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इससे तुम समझ गए होगे बूस्टर फैन क्या करता है। डेल्टा पी बी, जिसे रेगुलेटर रेजिस्टेंस ऐड करता था रेगुलेटर, वैसे बूस्टर फैन क्या करता है? प्रेशर ऐड करता है, डेट इज पी डेल्टा पी बी। समझ गए बूस्टर फैन क्या करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द कंसेप्ट कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है।
जैसे वो सीरीज और पैरेलल, ये पैरेलल हो गया, पीएफ है फैन प्रेशर, एंड दिस इज स्प्लिट ए एंड दिस इज स्प्लिट बी, ठीक है, एंड द टोटल क्वांटिटी दैट इज फ्लोइंग इज क्यू एंड दिस इज क्यू ए एंड दिस इज क्यू बी। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर एक फैन लगा देंगे, बूस्टर फैन, जो क्या करेगा, पी बी ऐड कर देगा, इट विल ऐड द प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या क्या चेंजेस आएगा तुम्हें ये जानना है, ठीक है। इससे एक ये चेंजेस आएगा, रेजिस्टेंस तो सेम होगा हर जगह, क्योंकि रेगुलेटर तो लग नहीं रहा, रेजिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन द इक्वेशन, इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, जो हम लिखते थे ना, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फैन, बताओ। जैसे यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप पूरा पीएफ हो रहा है, पीएफ, अब बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, जो हम लिखते थे ना, प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ फैन इज इक्वल टू द प्रेशर ड्रॉप इन शाफ्ट एंड प्रेशर ड्रॉप इन स्प्लिट। तो मान लो हम इक्वेशन लिखना है यहाँ से थ्रू स्प्लिट ए से, तो बताओ क्या होगा इक्वेशन। पहले तो प्रेशर ऑफ फैन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इनटू क्वांटिटी क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस, फिर सर बोलो, पीए का लिखेंगे सर, पीए का। हाँ, डेल्टा पी ए लिखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस तो सेम हो रहा है, ए का यही रह रहा है, नाउ क्यू चेंज हो जा रहा है, क्यू पहले क्यू ए था, मतलब क्वांटिटी तो चेंज होगा ही, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो मान लो न्यू जो क्वांटिटी क्यू बी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे माइनस पी बी होगा, प्रेशर ड्यू टू फैन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फैन ऐड कर रहा है, तो ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो। बूस्टर फैन थोड़ा समझना, ये समझे माइनस क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि इसको इधर ले जाके ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाएगा तभी तो क्यू ए बढ़ेगा। बूस्टर फैन का काम क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्प्लिट इंक्रीज करना, तो पी एफ प्लस पी बी इज इक्वल टू आर एस क्यू स्क्वायर प्लस आर ए क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन फ्रॉम दिस, इधर से लिख रहे हैं, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लो ये 1 है, पी एफ इज इक्वल टू आर एस क्यू स्क्वायर, मतलब शाफ्ट वाला तो होगा ही, प्लस पी बी में होगा तो आर बी क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, कहीं भी डाउट हो तो पूछना। और क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी होगा ही। अब एक काम करो, ठीक है, सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर ये जो बूस्टर फैन का जो प्रेशर है सर, वो एक स्प्लिट में इंक्रीज होगा ना, तो सर ये टोटल फैन फैन प्रेशर में क्यों ऐड हुआ सर? स्प्लिट में ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस पी बी यहाँ पे लिखे, स्प्लिट में, मतलब इस ए में लगा है, तो ए का जब ए का स्प्लिट का इक्वेशन लिखेंगे तब ए में आएगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। और जब हम बी के थ्रू लिख रहे हैं इक्वेशन, तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आ रहा है बूस्टर फैन, कहीं आ रहा है लगा हुआ रास्ते में, नहीं सर, नहीं आ रहा है। इस तरह से क्लियर रखना है, इक्वेशन कैसे लिखना समझ गया ना। अब एक काम करो, सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2, 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, जो इक्वेशन 1 है और 2 है, क्या आ रहा है बताओ ना, खुद से करो, मैं भी कर रहा हूँ। 0 आएगा सर इधर।
जीरो नहीं इज इक्वल टू देखो पीवी। इधर तो पीवी आएगा इज इक्वल टू, देखो पीएफ कट जाएगा, पीबी बचेगा इस आर एच एल एच एस में। इधर क्या बचेगा, आर एस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आर बी क्यू बी का आर होल स्क्वायर आर ए क्यू ए स्क्वायर माइनस आर बी क्यू बी स्क्वायर, ये बचेगा। तो तुम देख सकते हो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बूस्टर फैन क्या कर रहा है। तुम थोड़ा इक्वेशन को अच्छे से देखो। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, आर ए क्यू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी क्यू बी का होल स्क्वायर, जब बूस्टर फैन नहीं लगा था, ठीक है ना, ये था ना। जब बूस्टर फैन लग गया तो क्या चेंज हुआ, क्वांटिटी चेंज हो गया। पता है क्या हुआ, क्वांटिटी क्यू ए और क्यू बी चेंज हो गया, वो ठीक है, जिसकी वजह से वो नो लॉन्गर इक्वल नहीं रहा, आफ्टर पुटिंग इक्वल नहीं रहा। तो जो बूस्टर फैन है वो क्या करेगा, दोनों स्प्लिट के बीच में प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट करेगा। समझ गए, इक्वेशन 3। यस, तो जब भी मान लो क्या करेगा क्वेश्चन, मैं एक बता देता हूं, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आर ए दे देगा, आर बी दे देगा, ठीक है, क्यू ए बोल देगा कि मैंने यहाँ पे एक बूस्टर फैन इंस्टॉल कर दिया, और आफ्टर पुटिंग द बूस्टर फैन द क्वांटिटी हेयर इज 10 एंड क्वांटिटी हेयर इज 5, और आर ए मान लो 1 है, आर बी मान लो 1 है, दोनों 1 है। नाउ टेल मी व्हाट इज द बूस्टर फैन प्रेशर, बूस्टर फैन का प्रेशर क्या हुआ जो इंस्टॉल किया, वो इस तरह से पूछ देगा। तो किसके बराबर होगा, दोनों का प्रेशर ड्रॉप के डिफरेंस के बराबर होगा, इट इज 1 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बूस्टर फैन थोड़ा सा कर लेना खुद से, मुझे थोड़ा सा भी काम है, ठीक है। यस सर। तो आज का कैसा लगा क्लास, यूजफुल है ना? यस सर। चलो हाईली यूजफुल। सर हाँ बोलो। ये बूस्टर फैन शायद मतलब इसलिए लगा, मतलब क्यों लगाते हैं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ। अरे देखो, तुम्हारा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताते हैं, ठीक है। सर मैं रीजन दूं थोड़ा, मतलब ऐसे ही एयर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लगाते हैं। देखो तुम अपना रीजन दो, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे मतलब दो वर्किंग फेस हैं, तो जैसे एक बंद हो गया तो उधर भी जाएगा एयर, तो उधर एयर जाने का मतलब कोई यूज नहीं होगा, तो उसे स्टॉपिंग के थ्रू बंद कर देंगे, हाँ ये भी है। या फिर वहाँ पे रेगुलेटर लगा देंगे, वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, वहाँ क्वांटिटी फ्लो नहीं करेगा। तभी सर रीजन में जानना चाह रहा हूँ, मतलब ये मे बी करेक्ट नहीं। हाँ देखो, मान लो ये फेस है, ये सब, ये डायग्राम देखो, सब कहीं मिलेगा नहीं। देखो ये मान लो कहीं फेस है, ठीक है, जहाँ कोयला कट हो रहा है, ठीक है। तो तुमने जानते हो जहाँ कोयला कट होता है, जहाँ फेस होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलता है, सॉक्स नॉक्स मीथेन वगैरह ये सब निकलता है, निकलता है। तो क्या जो वेंटिलेशन के थ्रू जो एयर आता है वो समटाइम्स एडिक्वेट नहीं होता है। देखो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी तो प्रोवाइड करना ही करना है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और जितना कोयला प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। बट एडिशन टू दैट, ये जो हार्मफुल गैसेस होता है उसे भी निकालना है। तो वो जल्दी इजीली कैसे निकलेगा, अगर मान लो हमने यहाँ पे थोड़ा फ्लो बढ़ा दिया, मतलब क्वांटिटी बढ़ा दिया, व्हाट इफ आई इंक्रीज द क्वांटिटी हेयर, अगर एयर का क्वांटिटी बढ़ा दिया, मतलब ये एयर आ रहा है और तेजी से बाहर जा रहा है, तो क्या करेगा, इट विल डाइल्यूट द हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल जो गैस है वो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट कितना ज़्यादा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, मतलब जितना ज़्यादा फ्रेश एयर देंगे उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, है ना।
Yes, sir. तो इन these cases we generally put either booster fan, auxiliary fan, इस टाइप का हम फैन ऐड करते हैं. So what it does, it increases the quantity. You can see यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, विच इज सच दैट द एयर पासिंग थ्रू दिस, वो ज़्यादा एयर यहाँ से पास होगा एंड यहाँ पे जो एयर का क्वांटिटी है वो बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ा देगा. Yes. तो समझ गए बूस्टर फैन कहाँ लगाते हैं. Yes, sir. Clear हो गया सर. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक सर्वेइंग किया जाए या फिर कुछ अपने मन से ही ऐसा कुछ लाते. सर आप चूज कर लीजिए. ठीक है, मैं चूज सर करता. हाँ? सर्वे भी चलेगा सर. हाँ, सर्वे भी होगा, सारे टॉपिक को कवर करूंगा, रॉक मैकेनिक्स, वेंटिलेशन, सर्वे माइन इकोनॉमिक्स. या माइन इकोनॉमिक्स और ग्रेडिंग, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड. टाइम है यार, टाइम बहुत है, उसका टेंशन ना. लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्लास में उसे फिर जाकर रिवीजन कर लो तो ही फायदा होगा. अदरवाइज मैं बता दिया तो फायदा नहीं होगा, फिर कुछ नहीं किया खुद से तो. ठीक है, ओके देन, बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. Good night.